Good evening, everyone. My name is Kritika. I'm lecturer at Milton Polytechnic College, Jalandhar. Today, we will start with our new subject that is EIM, Electronic Instrument and Measurements. EIM is a very basic subject of measurement and about instruments. But before starting that, I would like to tell you about some of the precautions we need to undertake under Mission Fateh that has been started by our Chief Minister. That is, wash your hands, maintain social distance, and take care of yourself. Try to boost your immune system and stay safe. So now I would like to tell you about our subject that is EIM. And the first topic and first chapter of that subject is about measurement. So the name of first chapter is Basics of Measurement. Now I would like to tell you about what actually measurement is. We all know that measurement means when we are measuring some physical quantity or physical parameter, that is called as measurement. And if I talk about definition of measurement, that means when we convert a physical parameter into numeric value, that means we are measuring that thing. It is a type of process by which one can convert a physical parameter into its numeric value. When we have any numeric value, that means we have measured that particular instrument or particular device. Now there are two types of measurement. One is direct and the second one is indirect. Indirect measurement, we are measuring our device or quantity directly with the standard. Example, we can take that if we want to measure a length of a rope, then we already know that the standard to measure that length is centimeter or meter. So we do not need to convert it in other form. We can directly measure it as we have already standards given for standard particular to that quantity. And if I talk about indirect method, in that indirect method, as the name suggests, we need to change that quantity into some other quantity so that we could measure it properly. We can take an example as sound signal. If I want to measure my sound signal, then I need a transducer which will convert my sound signal into electrical signal, and then that electrical signal could be measured in the form of voltage. That means the pure example of this particular instrument is mic. When I am talking, then mic will have a sound energy as an input and it will give electrical energy as output. So mic is an appropriate example of indirect method of measuring sound. Now I hope that it is clear to you that what is measurement. Whenever we are measuring some physical quantity and we have a numeric value after measuring that, that means we have measured that particular quantity. And direct and indirect was the method of measurement. Now we will talk about the characteristics of measurement system. What characteristics we need to take care of while measuring any equipment or any instrument. So first of all, there are two types of main characteristics, that is static and other one is dynamic. Static means steady state reading. That means our instrument settles down to particular value. That means if I am measuring some quantity, then immediately I will have a stable output, stable numeric value. That is static. That means it is stable. In dynamic, there is a transient behavior between a time measuring quantity changes value and the time when the instrument output attains a steady value. That means when
whenever I measure a quantity, then it takes some time to get a stable output. Before that, it will have a transient output, and after a few seconds, it will be stable. That means that is dynamic. That means it has a transient behavior at first. After that, it will be stable to a particular value. That is dynamic. But in static, we directly have a stable value. So there are two types of measuring device, static and dynamic. As you can see in this graph, there is transient behavior. It takes some time to give a stable output. That is example of dynamic. Now we will talk about static performance of instrument. Static characteristics of an instrument are of many types. First one is accuracy and precision. Next one is range or span. Then linearity and sensitivity, repeatability and reproducibility, hysteresis, threshold, resolution, and dead space. First of all, we will talk about range. What is range? Range is maximum and minimum value of that quantity. If I take an example of this thermometer, you can see the minimum value is -20 and the maximum value is +60. So the range of this instrument is from -20 to +60. So range of an instrument defines the minimum and maximum value of quantity that the instrument needs to measure. That is from -20 to +60. And full scale reading of this will be maximum value minus minimum value. That is 60 minus -20, that will be 60 plus 20, that is equal to 80 degrees Celsius. So the measurement range is what? It is simply the difference between maximum and minimum. Here you can take an example. In this micrometer, dimensions are 50 and 75 millimeter. That means 75 is the maximum value and 50 is the minimum value. So the measurement range will be 75 mm minus 50 mm, that will be equal to 25 mm. So the range is maximum and minimum value of an instrument. And measuring range means the difference between the maximum and minimum value, right? Now the next is accuracy. What is accuracy? Accuracy means a very close output to a true value. That means accuracy of an instrument is a measure of how close the output reading of an instrument to the true value. कितनी पास हमारी जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के पास है. ट्रू वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू, दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू. हमारी जो वैल्यू आई है वो स्टैंडर्ड वैल्यू की कितनी पास है, दैट विल डिफाइन एक्यूरेसी. एग्जांपल, इफ आई टेक एन एग्जांपल, if I have a standard value of 100 and my measuring value is 99.99, that means it is very close to true value. That means it is, we can say it is accurate. So how close the output reading of the instrument is the true value. Now what is error? Now if I have an instrument whose value is 99.99 but standard value is 100, that means it is very close to the true value, then we can make it accurate by calibrating it. Calibration is what? जब हम किसी measuring device, जो हमारा measurement device है उसको और जो standard quantity है उसको आपस में एक दूसरे के साथ उस वैल्यू को मिलाने की कोशिश करते हैं by comparing their value, that is called as calibration. कैलिब्रेशन हम डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेजरिंग
कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो एक्यूरेसी आपको पता लग गया, एक ट्रू वैल्यू के पास जब हमारी कोई वैल्यू आ जाती है, दैट इज एक्यूरेसी। नाउ व्हाट इज एरर? यू कैन सी ये हमारी ट्रू वैल्यू है और ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है। ट्रू वैल्यू मीन्स जो स्टैंडर्ड वैल्यू है और ये वैल्यू हमारी मेजर्ड वैल्यू है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज एरर। एरर क्या होता है? जो हमारी एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए, जब वो हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रही तो हम कहते हैं एरर इंट्रोड्यूस हो गया। दैट मीन्स कि जो हमारी वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू थी, और जो हमारी मेजर करने के बाद वैल्यू आ रही है, उनके बीच में जो डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी एक्यूरेसी की। अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू 100 आनी चाहिए लेकिन हमारी वैल्यू आ रही है 99.99, दैट मीन्स जो डिफरेंस आ रहा है 100 और 99.99 के बीच में, दैट इज एरर। वो एरर को हम कैलिब्रेशन के थ्रू हटा सकते हैं। अब कई जगह पे हमें पहले से ही बताया होता है कि इसमें कितना एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास कोई 5.07 ग्राम की चीज है जिसका प्लस माइनस 0.02 ग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसकी वैल्यू 0.2 प्लस में भी हो सकती है, 0.2 माइनस में भी हो सकती है। मेरी कोई क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए, अगर मैंने बता दिया कि इसकी साथ में वैल्यू प्लस माइनस 0.02 भी हो सकती है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू 5.02 भी हो सकती है और 4.98 भी हो सकती है। यानी 0.02 ऊपर भी हो सकता है, 0.02 नीचे भी हो सकता है। उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी रेंज। इसमें भी आप एग्जांपल देख सकते हो। 13.76 जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए थी और प्लस माइनस 0.01 जो है वो डेविएशन हो सकती है, चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो सकती है? 0.76 से 0.01 ऊपर भी और नीचे भी, यानी 13.75 भी हो सकती है और इसमें प्लस भी हो सकता है, 13.77 भी हो सकती है और 13.76 एक्यूरेट भी हो सकती है। ओके, नाउ व्हाट इज प्रिसीजन? जब एक इंस्ट्रूमेंट की हम बार बार रीडिंग ले रहे हैं, बार बार उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं और बार बार उसकी रीडिंग्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है, तो हम कहेंगे ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मेरे पास एक कोई वेट है जिसका मैं वेट देख रही हूँ कितना, उसका वेट सपोज 3.2 किलोग्राम है। जब मैंने एक बार मेजर किया तो उसकी वैल्यू 3.2 किलोग्राम आ रही है, दूसरी बार किया तब भी उसकी 3.2 किलोग्राम आ रही है। ऐसे मैंने 5 टाइम्स उसकी वैल्यू को चेक किया और 5 टाइम्स उसकी वैल्यू 3.2 किलोग्राम आ रही है। दैट मीन्स हम बोलेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है या ये जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं दैट इज वेरी प्रिसाइज, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो उतनी ही रह रही है बार बार रीडिंग्स लेने के बाद। सो प्रिसीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी। हम ये जरूरी नहीं है कि जो प्रिसीजन जो प्रिसाइज है वो एक्यूरेट भी होगा। हो सकता है अगर वो गलत रीडिंग दे रहा है तो वो 5 टाइम्स मेजर करने के बाद भी गलत रीडिंग ही दे रहा है, वो रीडिंग एक्यूरेट नहीं है लेकिन वो प्रिसाइज है, मतलब बार बार रीडिंग्स लेने पे भी वो रीडिंग चेंज नहीं हो रही, दैट इज वेरी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। अब ये एग्जांपल देखो एक्यूरेसी और प्रिसीजन की। हो सकता है एक वैल्यू ट्रू वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू, हो सकता है एक वैल्यू एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी हो कि वो सही वैल्यू बार बार 5 टाइम्स दे रहा है। हो सकता है वैल्यू इनएक्यूरेट है लेकिन बार बार वही वैल्यू आ रही है, तो दैट मीन्स इनएक्यूरेसी है, वैल्यू ट्रू नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। अब ये भी हो सकता है कि वो प्रिसाइज नहीं है लेकिन एक्यूरेट है। वो कैसे? एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने जैसे अभी एग्जांपल ली थी कि हम एक चीज को मेजर कर रहे हैं जो 3.2 किलोग्राम है, मैं उसकी बार बार वैल्यू ले रही हूँ, वो 3.2, 3.2, 3.19, 3.2, 3.19, 3.99 इस तरह से वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स उसकी वैल्यू 3.2 के बहुत पास आ रही है, तो वो एक्यूरेट तो है बट वो प्रिसाइज नहीं है क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है। 5 टाइम्स मेजर करने से वैल्यू में हल्का सा चेंज आ रहा है, तो वो प्रिसाइज नहीं होती।
इनएक्यूरेट और इम्प्रिसाइज भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, ये फिगर देखो, सबसे पहले हमारे पास 3 रॉबर्ट्स हैं। हमारा काम क्या है, ये रॉबर्ट्स ने जो इनके पास सामान है वो सेंटर में रखना है। इनका टारगेट है कि ये सेंटर में रखना है टेबल के। अब फर्स्ट वाले केस में देखो, ये रॉबर्ट ने जो इनके पास मटेरियल था या कंपोनेंट्स थे वो उसने अलग अलग जगह पे रख दिए। मतलब बार बार देखेंगे तो वो अलग अलग जगह पे रख दिए। दैट मीन्स वो सामान इकट्ठा नहीं रखा, वो कंपोनेंट्स इकट्ठे नहीं रखे। दैट मीन्स ना तो यहाँ प्रिसीजन है, सब अलग अलग जगह पे है तो प्रिसाइज नहीं है, ना ही एक्यूरेट है क्योंकि सेंटर में आना चाहिए था और वो सेंटर में नहीं आया तो एक्यूरेट भी नहीं है। सेकंड केस में देखो, 5 के 5 कंपोनेंट्स रखे उसने एक ही जगह पे हैं और रखने भी एक ही जगह पे थे, लेकिन सेंटर में रखने थे उसने साइड पे रख दिए। दैट मीन्स प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तीसरे केस में उसने सेंटर में भी रखे और इकट्ठे भी रखे, तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। क्लियर? तो ये डिफरेंस है हमारा एक्यूरेसी और प्रिसीजन। नेक्स्ट आता है रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है वो प्रिसीजन से रिलेट करते हैं। रिपीटेबिलिटी का मतलब कि हमारी जो आउटपुट की रीडिंग आ रही है वो कितनी क्लोज है अगर हम सेम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मैंने एक वेट को सपोज 3.2 किलोग्राम का मेरे पास कोई वेट है, उसकी मैं वैल्यू देखना चाहती हूँ क्या है। उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए मैंने 5 बार रीडिंग ली, 3.2 किलोग्राम, 3.2 किलोग्राम, 3.2 किलोग्राम, 3.2 किलोग्राम, 3.2 किलोग्राम ही आ रहा है बार बार रीडिंग लेने के लिए। मतलब मैंने जो इनपुट प्रोवाइड करी, सेम इनपुट पे सेम आउटपुट आ रही है। अगर मैंने इनपुट जितनी दी थी उसके कॉरेस्पॉन्ड जो आउटपुट आनी चाहिए थी वही आउटपुट आ रही है बार बार मेजर करने के बावजूद। वो क्यों? क्योंकि सेम इनपुट पे सेम आउटपुट आ रही है, सेम लोकेशन पे हम मेजर कर रहे हैं बार बार, सेम एनवायरमेंट कंडीशंस है बार बार मेजर करने पे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ और बार बार एक्सपेरिमेंट करने पे वैल्यू सेम आ रही है, उसको हम बोलते हैं रिपीटेबिलिटी। बार बार रिपीट कर रहे हैं और कोई भी चेंज नहीं हो रहा, इनपुट वही रखी हुई है, आउटपुट भी वही आ रही है, एनवायरमेंटल कंडीशंस भी वही है और लोकेशन भी वही है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ और आउटपुट भी वैसी की वैसी है, इनपुट भी वैसी की वैसी, तो इसको हम बोलेंगे रिपीटेबिलिटी। रिपीट करने पे भी वैल्यू सेम आ रही है। दूसरा है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब कि जो हमारी आउटपुट रीडिंग है वो सेम इनपुट देने पे कितनी क्लोज आ रही है जब हम मेथड को चेंज करते हैं। अब पहले रिपीटेबिलिटी वाले केस में मैंने जो मेथड ऑफ मेजरमेंट था वो भी सेम रखा, 5 बार रीडिंग लेने पे सेम तरीके से ही 5 बार रीडिंग ली। लेकिन रिप्रोड्यूसिबिलिटी में मैंने 5 बार रीडिंग ली है लेकिन अलग अलग मेथड से, तो हमारी आउटपुट 5 बार अलग अलग मेथड से रीडिंग लेने के बाद भी जब सेम आएगी हम उसको बोलेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसको हम एग्जांपल देकर समझते हैं। पहले आप ये देख लो, रिपीटेबिलिटी में क्या है, हमने कोड को बार बार रन किया और उसके डिफरेंट रिजल्ट्स आए। इसमें हमने कोड को बार बार रन किया और सेम रिजल्ट्स आए, तो ये आ गया रिपीटेबिलिटी। सब कुछ सेम है, रिजल्ट्स भी सेम है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या हुआ, हमने सेम रिजल्ट्स मिले हमें लेकिन डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करने के बाद। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरा एक आउटपुट है जो कि 8 आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, मैंने 5 + 3 = 8 मेजर करना है। 5 + 3 होने पे वो 8 आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। 5 + 3 8, दूसरी बार प्रैक्टिकल किया फिर से 5 + 3 8, तीसरी बार किया फिर से 5 + 3 8, तीनों बार किया, सेम मेथड यूज किया एडिशन का और आउटपुट सेम आ रही है। यानी इनपुट भी मैं एडिशन ही कर रही हूँ, कैलकुलेशन भी सेम हो रही है और आउटपुट भी सेम आ रही है, एनवायरमेंट भी सेम है, लोकेशन भी सेम है। ये हो गई रिपीटेबिलिटी। दूसरा केस देखो, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अब आउटपुट आनी चाहिए 8, आउटपुट सेम आनी चाहिए लेकिन मेथड डिफरेंट हो सकता है। अब मैंने एक बार मेथड किया 5 + 3 = 8, दूसरी बार किया 6 - 2 = 8, तीसरी बार किया
7 + 1 = 8, तो मैंने अलग अलग मेथड यूज किए लेकिन आउटपुट सेम है। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करने के बाद भी जब आउटपुट सेम आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज हमारे पास एक रूम की विड्थ को हमने मेजर करना है, 10 बार हम उसको मेजर कर चुके हैं अल्ट्रासोनिक रूल के साथ, और 10 बार मेजर करने पे ऐसी आउटपुट आ रही है। एक बार 5.381 आई, फिर 5.37 आई, 5.372, 5.382, तो अलग अलग रीडिंग्स आ गई 10 बार ही, लेकिन एक्यूरेसी के बहुत पास है। ठीक है। फिर दूसरी बार हमने रूम की विड्थ चेक करी लेकिन स्टील टेप के साथ, मेथड ऑफ मेजरमेंट चेंज कर दिया। पहले अल्ट्रासोनिक रूल के साथ चेंज कर रहे थे, मेजर कर रहे थे, अब कैलिब्रेटेड स्टील टेप के साथ मेजर कर रहे हैं। अब इन दोनों के मेजरमेंट मेथड चेंज हो गए हैं, लेकिन हमें देखना आउटपुट हमारी पास सेम आ रही है या नहीं आ रही। फर्स्ट केस में हमारी जब हम मीन लेंगे, इसका पूरा मीन वैल्यू निकालेंगे, तो वो आ जाएगी 5.380, और इसमें हमारी क्या वैल्यू आ रही, इसकी मीन वैल्यू आ रही है 5.380, लेकिन मैक्सिमम डेविएशन दिया हुआ है हमें, कितना आएगा, ±3 mm या ±0.003 mm, यानी कि इसकी वैल्यू 0.003 mm तक चेंज हो सकती है। तो हम इसकी वैल्यू मैक्सिमम ले लेते हैं। इस सब में देखो रीडिंग्स में मैक्सिमम रीडिंग कौन सी है, दैट इज 5.383, 5.38। तो पहली वाली में 5.383 और दूसरे मेथड से हमने मेजर किया तो वो आया 5.374। इन दोनों को हमने डिफरेंस किया, दैट विल बी 0.009 मीटर, दैट मींस 9 मिलीमीटर। तो मैक्सिमम मेजरमेंट इन एक्यूरेसी कितनी हो गई, +9 मिलीमीटर। मतलब दोनों मेथड से हमने मेजर किया तो आउटपुट में 0.009 मीटर का चेंज आया। ठीक है, समझ में आ गया। रिपीटेबिलिटी में बार बार हमने रिपीट किया है, सेम इनपुट सेम आउटपुट, सेम मेथड ऑफ मेजरमेंट। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में हमने मेथड ऑफ मेजरमेंट चेंज कर दिया, लेकिन आउटपुट जो है वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है। अगर इन दोनों में डिफरेंस आएगा तो हम उसको बोलेंगे इनएक्यूरेसी, दैट विल बी 9 मीटर। इस केस में दैट विल बी 0.009 मीटर और 9 मीटर। अब थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है जब हमने इनपुट को चेंज करा और आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जहां पे जाके आउटपुट में चेंज आना शुरू हो जाएगा, दैट विल बी थ्रेशोल्ड वैल्यू। यहाँ पे देखो क्या है डेफिनेशन। इफ द इनपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो, जब हम जीरो से उसकी वैल्यू को चेंज करना शुरू करेंगे, द इनपुट विल हैव टू रीच टू अ सर्टेन मिनिमम लेवल बिफोर द चेंज इन द इंस्ट्रूमेंट आउटपुट रीडिंग। आउटपुट रीडिंग चेंज होने से पहले वो एक मिनिमम लेवल पे पहुंचेगा, जहां पे जाके चेंजेस हमें नजर आने शुरू हो जाए। तो जो मिनिमम लेवल ऑफ इनपुट होगा, जहां पे जाके हमारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसमें देखो एग्जांपल, ये देखो हमारी आउटपुट और इनपुट है, यहाँ पे 0 है इनपुट, आउटपुट भी 0, इनपुट 1, आउटपुट 0, 0 0, आउटपुट कोई नहीं आ रही। हम इनपुट बढ़ा रहे हैं लेकिन आउटपुट यहाँ तक 0 ही रह रही है। यहाँ पे जाके इनपुट जब बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट बढ़नी शुरू होगी, दैट मींस दिस पॉइंट विल बी अ थ्रेशोल्ड पॉइंट, दिस वैल्यू विल बी थ्रेशोल्ड वैल्यू। सपोज ये 4 वैल्यू है, तो ये 4 वैल्यू से हमारी जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू काउंट होगी, क्योंकि इसके बाद हमारी आउटपुट इंक्रीज होनी शुरू हुई। पहले हम इनपुट बढ़ा रहे थे लेकिन आउटपुट हमारी 0 रह रही है। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है? एक स्मॉलेस्ट चेंज जो हमारे इनपुट सिग्नल में आया जब हमने मेजर करना शुरू किया, दैट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। इट इज अ मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट सिग्नल दैट अ मेजरमेंट सिस्टम कैन डिटेक्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम स्पीडोमीटर। कार में हमारे स्पीडोमीटर लगा होता है जो स्पीड चेक करता है, उसमें सब डिविजन्स दी होती है मीटर में। सपोज 10 माइल्स पर आवर की जो वो सब डिविजन्स दी हुई है। इसका मतलब जब नीडल हमारी मार्किंग पॉइंट पे है, जैसे जो हमारी नीडल है वो अगर एक फर्स्ट मार्क पे है, देन सेकंड मार्क पे है, तो हम इजीली उसको जज कर सकते हैं कि जो सेकंड मार्क है वो कितनी वैल्यू का है। लेकिन अगर हमारी नीडल फर्स्ट मार्क और सेकंड मार्क के सेंटर में है, तो हमें एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं लगेगी। हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती।
तो जब वो सेकेंड मार्क पे पहुंचेगा तो हमें एक्यूरेट वैल्यू पता लगेगी। दैट मीन्स कि जो वैल्यू रेजोल्यूशन क्या हुआ जब हमें जाके वैल्यू में चेंज पता लगने लगा। This means that when the needle is between the scale marking, we cannot estimate the speed more accurately than to the nearest 5 miles per hour. This means the value of 5 miles per hour does represent the resolution of the instrument. अब जो दो मार्क्स थे उनके बीच में 5 माइल्स पर आवर का डिफरेंस आ रहा है, तो जब वो सेंटर में है दोनों मार्क्स के तो हमें पता नहीं लगेगा, जैसे ही वो मार्क के ऊपर आएगा तो हमें 5 मार्क का डिफरेंस पता लगने लग जाएगा, तो हमें वो रेजोल्यूशन हो जाएगा। स्मॉलेस्ट चेंज जो हमारी वैल्यू में है जो हम मेजर कर सके, जब वो 2 मार्क्स के बीच में नीडल है तो हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे, जब वो 2 मार्क्स से हटके दूसरे मार्क के ऊपर नीडल आ गई तब हम उसको मेजर कर पाए, दैट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन, जहां पे जाके सिस्टम वैल्यू को डिटेक्ट कर पाता है एक्यूरेट। सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी बेसिकली होता है आउटपुट ओवर इनपुट, चेंज इन आउटपुट ओवर चेंज इन इनपुट। मोर एक्यूरेटली अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन को, तो सेंसिटिविटी क्या होता है? इट इज चेंज इन इंस्ट्रूमेंट आउटपुट, चेंज इन आउटपुट दैट अकर्स व्हेन क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड चेंजेस बाय गिवन अमाउंट। द सेंसिटिविटी क्या है? स्केल डिफ्लेक्शन ओवर वैल्यू ऑफ मेजर एंड प्रोड्यूसिंग डिफ्लेक्शन। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक प्रेशर है जो 2 बार का है, प्रेशर ऑफ 2 बार जिसकी डिफ्लेक्शन 10 डिग्री तक शो हो रही है, तो सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो 5 डिग्री हुआ। कैसे हुआ? 10 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है? चेंज इन आउटपुट ओवर चेंज इन मेजर वैल्यू। आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है जब हम इनपुट को चेंज कर रहे हैं। अगर मेरी आउटपुट जो है वो सपोज पहले 5 थी और इनपुट जो है वो हमारी 4 थी, तो अगर मैंने इनपुट को 5 कर दिया तो आउटपुट भी 6 होनी चाहिए, दैट इज सेंसिटिविटी। आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है इनपुट को चेंज करना। अगर मैं इनपुट को बढ़ा रही हूँ तो आउटपुट भी बढ़नी चाहिए, अगर इनपुट कम हो रही है तो आउटपुट भी कम होनी चाहिए, दैट इज सेंसिटिविटी। हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर लेके चलते हैं, हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनकी जो हियरिंग पावर है वो कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन जो यंग पीपल होते हैं उनकी हियरिंग पावर जो है वो ज्यादा होती है। हमारी जो हियरिंग पावर है वो ज्यादा है, दैट मीन्स कि अगर वो कहीं हल्की सी भी आवाज आती है तो हमें सुनाई पड़ जाती है, लेकिन जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको हल्की आवाज जो है वो नहीं सुनाई पड़ती, उनके लिए हमें थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ता है। दैट मीन्स उनके जो ईयर हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं रहे, लेकिन हमारे ईयर जो यंग पीपल की ईयर है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, दैट मीन्स हमें हल्का सा इनपुट सिग्नल भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये अदर एग्जांपल ऑफ सेंसिटिविटी है। अगर हम डेफिनेशन में लेके चले तो सेंसिटिविटी की प्योर एग्जांपल इज चेंज इन आउटपुट ओवर चेंज इन इनपुट। दिस इज द प्योर डेफिनेशन। यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल मेजरमेंट डिवाइसेस में अगर हम लेके चलें, हमारे पास एक थर्मामीटर है जिसकी रेजिस्टेंस ये है और टेम्परेचर ये है। अब हमने इसकी सेंसिटिविटी मेजर करनी है। दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। 307, अगर हम 200 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस आती है 307। 230 टेम्परेचर रखते हैं तो 314, 260 रखते हैं तो 320 एंड 290 रखते हैं तो 320। अब जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखो इन सबके बीच में डिफरेंस कितना है, 7 7 7 7, और इन सबके बीच में डिफरेंस कितना है, 30 30 30 30। जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होगा, मतलब जब हम यहाँ से हमने इनपुट को बढ़ाया तो 30 चेंज आया, इधर से देखो 200 पे 307, मतलब 230 पे जब हमने यहाँ से 30 रीडिंग बढ़ाई यहाँ 7 बढ़ा, अगेन 30 बढ़ाई यहाँ फिर 7 का डिफरेंस आया, अगेन 30 बढ़ाई यहाँ फिर 7 का डिफरेंस आया। तो दैट मीन्स कि जितना इनपुट में चेंज आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्ड आउटपुट में चेंज आ रहा है। तो सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे हम? 7, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 7/30, दैट विल बी 0.233 ओम डिवाइडेड बाय डिग्री सेल्सियस।
change in output over change in output over change in आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है 777। जब हम थोड़ा इनपुट चेंज कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट में चेंजेस आ रहा है, दैट इज सेंस। नेक्स्ट इज लिनियरिटी। लिनियरिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिप्रोड्यूस इट्स इनपुट लीनियरली। जब हमारा आउटपुट और इनपुट के बीच में लीनियर ग्राफ बनता है, an instrument is called as linear when its input output relationship is a straight line। जब एक straight line बनती है आउटपुट और इनपुट के बीच में, that is called as linearity। It is defined as straight line over actual reading, that means maximum deviation of output from idealized straight line। हमारी जो actual straight line होनी चाहिए उससे हमारी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो कितनी को चेंज आ रही है, that is called as linearity। ये देखो ये हमारी एक्चुअल लाइन है, स्ट्रेट लाइन ये वाली होनी चाहिए, लेकिन ये जो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस लगे हैं हमारी ये वाली रीडिंग आ रही है। दैट मीन स्ट्रेट लाइन के पास है लेकिन प्योर स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन लिनियरिटी। जो स्ट्रेट लाइन थी दिस वाज लिनियरिटी, लेकिन जो हमारी वैल्यू आ रही है वो हल्की सी नॉन लिनियर आ रही है एज कम्पेयर टू दिस स्ट्रेट लाइन। तो लिनियरिटी क्या होता है? इनपुट आउटपुट रिलेशन जो है वो दोनों के बीच में जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन का होना चाहिए। अगर उसमें से हल्का सा भी चेंज आ रहा है तो वो हल्का सा नॉन लीनियर होने लग जाता है। This was the correct all about the characteristics of our measuring devices. I hope you like this video. If you have any query you can comment me below. Thank you so much.